I was thinking like you are in another's voice room. That's why I didn't join you. No, Well, I don't care about the others, you know? no. Because of this DP, I thought that you are in others' voice room because of DP's others. Mm-hmm. Yeah. I changed it because people are concerning about my DP, my previous DP, and I feel insecure about that. Okay, but in the conversation, it is showing your previous DP. That's the reason. Yeah, my previous DP, like, they asking about it and see different type of perspective about it. That's why I change it, Okay. and my need to. Yeah. So, how has your day been? Uh, I'm just free, like having free time after completing my job. Okay. So, like, have you heard any news or something else we could talk upon, like any social or any issue? No, I just heard any kind of job. Sorry, news. Okay. Yeah. So, when would be the election be held in your locality? Yeah, there are elections, but I just had any kind of information about it. Okay. Actually, in our locality, it is in on first phase. Yeah, First phase. yeah, It would be on yeah, 19th of April from Saharanpur. yeah. Yeah, and Well, yeah. well, big brother, I had an insecurity about me. Sorry. I mean, I had a insecurity about myself. Okay, yeah, just go ahead, bro. I mean, people are asking me about my voice, like they are concerning about, like anything is wrong with. I mean, something was wrong with it. No, no, it's not like this. That because of every individual has a unique set of, vocal cords, and you could see that mine as well. It is not like that much clear or kind of things, but I don't consider it. Like, मतलब आप हिंदी में बता सकते हो क्या मुझे मतलब? एक होता है ना थोड़ा सा एक यूनिकनेस होती है आवाज़ में, तो आई हाँ डोंट हाँ थिंक कि मतलब ऐसा कोई इशू है, और हो भी मैं दैट आई आई हैव मेट मैनी पीपल कि उनकी आवाज़ ना थोड़ी मतलब थोड़ी क्या मतलब एक होता है कि मतलब थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं कि एक अलग से मतलब डेविएट्स करती है एक कॉमन पैटर्न से जो ट्रेंड होता है ना उससे, बट आई हाँ, डोंट तो थिंक और मतलब मुझे समझ नहीं आता लोग मेरी आवाज के बारे में मुझसे इतना क्यों पूछते हैं। लाइक थोड़ी देर पहले भी एक बंदा आया था, मैं डिबेट कर रहा था रैंडम लोगों के साथ। तो लाइक आपने देखा होगा तीन हाँ चार लोग थे रूम में काफी देर पहले। तो एक बंदा था नीचे, लाइक वो ना ऊपर नहीं आ रहा था, बस नीचे से पूछ रहा था ये डीप वॉइस किसकी है। या actually you have got a good voice, and whenever you speak, then it is like crystal clear, and sometimes while I'm speaking, then sometimes I record my voice. So what happens, it is I feel that it is kind of not that much kind of crystal clearness in my voice, Yeah, but I can feel that your voice is quite deep, and it could be here, for public yeah, speaker it is good to have like to have a voice like you. yeah. But Yeah. I don't know, like whenever I ask people like, hey, what or why they are asking about my voice, and he does reply me, like he does response me properly. Okay. Yeah. That's why I had a misunderstanding and insecurity about it. That's why I asked you, because I had trust with you. Like you Yeah. can share me Yeah. a Yeah. honest perspective about it. No, no, it's quite interesting, and like I think there should also, always be a uniqueness in ourselves, because it is the only thing that stand apart us from the Yeah. crowd. मतलब जैसे लोग मुद्दा उठा देते हैं पर उसको क्लियर किए बिना छोड़ देते हैं ना, तो मतलब सामने वाले को ना समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कहा था उसने। हाँ हाँ, and लाइक वो चीज हुई है मेरे साथ। exactly.
Yeah, so yeah, it हाँ happens. And हाँ sometimes people are more judgmental, like लाइक मतलब regarding. मुझे लोग पता नहीं क्यों बहुत जज करते हैं, जैसे लाइक मेरी डीपी को भी बहुत जज करते थे, और मेरे नाम को भी जज करते थे कि नाम का क्या मतलब है। लोग मुझे कहते थे कि आप कोई रैपर हो क्या। Yeah. और फिर वॉइस का भी वही लोग वॉइस के बारे में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, तो मैंने चेंज करने की कोशिश की। अब वॉइस का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, डीपीओ और नाम का तो मैंने कर लिया। It's okay, bro. DPR. I think like people pay more attention on on the issues that are not relevant. That are not going to make any change, rather than discussing something useful and that could make a change in society. They just focus on these things, or sometimes आपने देखा होगा बहुत से जो I think like there are many boys as well that they you know they just judge a person by his outer appearance, his voice and other kind of और things. लाइक मेरे पास मतलब मेरे साथ दो तीन इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिनमें लोग ना मुझे मानने से इनकार कर देते हैं कि मैं इंडियन हूँ। Yeah, okay, that's लाइक वो quite मुझे अमेरिकन कंसिडर करते हैं। okay. No, no, bro, it's good. And you know, this is the thing that I would like to incorporate among my students, because first thing that they should imbibe themselves ki by there is kind of uniqueness and individuality in each and every person. And you have seen like many many boys have voice like girls, girlish voice. And sometimes it it is quite, it happens quite unusual, like. And तो in लाइक classroom. मेरे साथ ना पता नहीं क्यों, पर मेरे साथ ना बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट होते हैं। लाइक मैं हर बार लाइक हर एक वीआर में जज होता हूँ किसी ना किसी बात को लेकर। तो लाइक लोग मतलब जैसे ये भी मानने से मना करते हैं, लाइक उनको वो उनको विश्वास नहीं होता कि मैं सिर्फ 19 साल का हूँ। Yeah, that's the problem, लाइक थोड़ी देर पहले मैं एक अरेबियन लड़की थी और एक अपना इंडियन लड़का था। तो yeah. लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी एज क्या है। मैंने उन्हें बताया कि मैं 19 ईयर्स ओल्ड हूँ। Mm-hmm. तो उन्होंने मानने से मतलब वो हिचकिचा रहे थे कि कैसे हो सकता है ऐसा। Actually, their knowledge is shallow. The person who have deep knowledge and much experience of life, he would not be going to argue about these things most. He would just discuss something, rather it is personal, or if we are just more and more friendly, then we could just deal with our personal problem, that I'm sharing my personal problem with you. What could be the practical or something, some solution of it, rather than just arguing some issues, even if you are not 19, you know pers- if let consider a situation that uh, I am 24 and I am telling that I am 22. So it should not be the big deal here. What is it going, you know वो कहते हैं ना, like many persons are like, we are this, so we should be identified as this and this. So I don't think this should be a limelight kind of thing. हाँ, तो जैसे मैं सोच रहा था कि मैं ना एक अलग तरीके का थोड़ा यूनिक और लाइक आइडिया था मेरे मन में काफी टाइम से ही, जब से मैंने इस ऐप को निकाला था। Yeah. तो लाइक अभी मैं लाइक मेरा मतलब खुल गया है कि मैं अब वीआर बना सकता हूँ खुद का। तो लाइक मैं सोचता हूँ कि अब करने की इसको कि ना मतलब ऐसा मैं वीआर बनाता हूँ जिसमें ना लोग वॉइस ओवर जो मिमिक्री होती है उसको ट्राई कर सके। Okay. नहीं Yeah. मतलब काफी इंटरेस्टिंग होगा ये। Mm-hmm. लाइक अगर लोग उनके फेवरेट कैरेक्टर्स की मिमिक्री कर रहे हैं। Okay. So could you make anyone of you like your favorite, or it is only for the हाँ others? हाँ मतलब मेरा है एक फेवरेट कैरेक्टर, उसका नाम है माधारा उचिहा। Okay. So could you just tell about this character in brief? मतलब ये काफी पावरफुल कैरेक्टर है।
पूरी सीरीज का। ये नारुतो से है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन है। और इसकी ना बहुत ज्यादा डीप वॉइस है, लाइक अगर आप चेकआउट करोगे तो। Okay, you know what? बहुत बैडनेस कैरेक्टर है। Okay, I'm just trying to figure it out. You know, I have heard, and you know, the person was quite friendly with me, the same voice like you, but he is not coming to in my mind at the moment. So, yeah, go ahead with you. लाइक मेरे पास मतलब मुझे ना ऐसे कैरेक्टर पसंद आते हैं जिनसे मैं रिलेट कर पाऊँ, जैसे कि माधारा, ओबीटो, एरन येगर, लाइट यागामी, गारा, ऐसे लाइक जिनकी पर्सनालिटी है मुझसे काफी हद तक मैच करती है। लाइक मतलब उनसे लाइक अगर मैं ऐसे हर किसी कैरेक्टर को पसंद नहीं करता जैसे लोग करते हैं, जैसे जैसे सातारो गोजू हर किसी छपरी का फेवरेट हो चुका है आजकल। वैसे मतलब वैसा सीन कम है मेरा। Okay. Yeah, you know, it depends person to person. And I was seeing a reel just before I initiated this app, you know, where there were some Korean actors, you know. So Yeah, I know K-pop actors. yeah, so people were just commenting BTS आर्मी BTS आर्मी, तो फिर उनको अवॉइड वो कर रहे हैं, डिफेंड कर रही है गर्ल्स की। हर आदमी कोरिया का BTS नहीं होता है भाई। हाँ, नहीं इन्होंने तो अलग ही तबाही मचा रखी है बीटीएस वालों ने तो। Yeah. Even you know, I wasn't aware about this. What kind of BTS is this? Then I searched what is BTS. It came out like army. Then BTS army. फिर मैंने search किया. Then I just you know get to know about बीटीएस this. लाइक मतलब ग्रुप है एक पॉप सिंगर्स का। Yeah. लाइक जिनको लोग ये कंसिडर करते हैं अपने इंडिया के खास करके। Yeah, that's the thing that was commented in this, you know, कि हम तो पहली लाइक लोग ऐसा ऐसा भी बोलते हैं उनके बारे में तो कि इनका जो प्राइवेट पार्ट है वो काफी छोटा होता है। ऐसा कह के ट्रोल करते हैं लोग इन्हें, इनकी बियर्ड नहीं आती, ये मैस्कुलिन नहीं है। Yeah, that's the you know ये मेकअप करते हैं, ऐसा ऐसा करके उन्हें ट्रोल करते हैं। It is, you know, I have heard a speech of Sadhguruji on this topic. You know, it is their personal, you know, someone's personal, you know, issue. You know, he should not be glorify that I'm this and that. It is his or her personal issue. It should be kept private, and it doesn't mean, you know, it does mean to his or her partner. रेसिज्म का क्या कर सकते हैं? Yeah, वही है। इंडिया के लोगों का थोड़ा नैरो माइंडसेट है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। It is only a you know lack of education or rather quality education, I would मतलब say. जैसे वो लोग तो अपने खुद के देश के लोगों को नहीं छोड़ते तो बाहर के देश के लोगों की क्या ही वैल्यू करेंगे। Exactly, bro. Even you have seen some अगर लाइक कोई एलजीबीटी से है, लाइक कोई लेस्बियन है या गे है या फिर ट्रांसजेंडर है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान से लेस हो गए। Yeah, and even you have seen, you know, I have seen many and came across many shorts or reels that even some, you know, some good students forced to end up their lives when they were bullied in schools or something on social media as well. You know, it is quite emotional for me. You know कि किसी को इतना ही ट्रोल कर दो कि नहीं एक लड़के ने पीयूष नाम का शायद लड़का था वो जिसने सुसाइड कर लिया था। या आई थिंक या लाइक वो ट्रांसजेंडर लड़का था वो, पर वो गे था तो वो ट्रांसजेंडर बनना चाहता था। पर जब लाइक उसने सुसाइड भी कर लिया तो लोगों ना उसकी जो लाइक वीडियो थी इसमें बताई गई इस न्यूज़ की वो उसने इस वजह से सुसाइड कर लिया। लोग कमेंट पे लिख रहे थे कि अच्छा हुआ एक कम हो गया। या ज्यादा लोगों को ऐसे कुछ कमेंट्स थे। that's ये गलत बात है यार, कोई अगर मर गया है तो उसकी अब तो छोड़ दो यार उसको कम से कम। Exactly. If someone is doing that is polluting the society, then it could be, you know, compared to the police station rather than just actually the thing is that, you know, हमारे जो बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में and due to population. लाइक ये ऐसे ही करते हैं यार, इनको खाली टाइम होता है ना तो ये ऐसे परेशान करते हैं दूसरों को। Exactly. You know, मैंने हार्डली 100 कमेंट्स किए होंगे आज तक पूरी लाइफ में सोशल मीडिया पे। अदरवाइज जस्ट मैं भी लाइक जितना जरूरी होता है ना तभी करता हूँ। लाइक मैं तो वीडियो को लाइक्स भी तभी करता हूँ, लाइक मुझे वास्तव में अच्छी लगी।
एंड समथिंग कि ये पॉजिटिव मैसेज देगी सोसाइटी में, तो मैं उसको ही जनरली लाइक करता हूँ रादर देन जैसे जस्ट। मैं तो मतलब जैसे कुछ पूछना होता है या फिर लाइक कुछ मतलब चीज होती है कि भाई अपन को इसके बारे में जानना है, तो उस तब कमेंट करता हूँ। लाइक ऐसे लोग तो हर किसी वीडियो पे कमेंट करके आते हैं। एग्जैक्टली, बट आई थिंक we should more focus on our quality education, then only these things would हम्म। ruin away. Otherwise our society is becoming more and more, how to say, intolerant. लाइक पर लोगों को थोड़ा स्ट्रेंजर्स के खिलाफ तो यार नॉन जजमेंट होना चाहिए। Exactly. And लाइक if इस ऐप पे लोग आते हैं, जैसे कि लोग मुझे जज करते हैं, तो उनको पहले जज करने से पहले सोचना चाहिए कि उस पे बंदे के माइंडसेट पे कैसा असर पड़ेगा इसका। exactly, and sometimes I went to a हम्म। few voice rooms where हम्म। two or three incidents were like this. They were just gone to my profile, seeing that he हम्म। has written as a revenue हम्म। sub inspector. I have written it because I want only discuss about some serious or serious candidates discussion पे. या मैं भी ऐसे ही लीव कर देता हूँ। लाइक अगर मुझे नहीं जमता तो मैं हाँ, ऐसे अचानक से लीव नहीं करता, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि गुड बाय, हाँ, या ऐसे सो करके फिर मैं लीव कर देता हूँ। सो देवर मोकिंग कि ये सब लिखने का क्या जरूरत था कि आप रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर हो। मैंने कहा हाँ, बस। तो अगर हमारी मर्जी है यार, हम या लिखना चाहते हैं कि हम हमारी अचीवमेंट्स हैं, हम इस पोस्ट या पर हैं, तो लाइक लोग हमको कंसिडर करें कि हाँ भाई बंदा ऐसा है, तो उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। लोग भी तो लिखते हैं कि हम कोरियन से शादी करना चाहते हैं, हम ये है वो है, हमारा बर्थडे ये आता है, उससे तो अच्छा ही है ना ऐसा कुछ लिखना। even I have just hide my birthday from Facebook. It is only because I don't like to enjoy the हाँ। birthday in that kind कि आप मुंह पर केक लगाओ, आप सिंपल बर्थडे मनाओ, केक कितना भी खाओ, बट दिस काइंड ऑफ ट्रबल मेकिंग कि आप किसी के मुंह पर ही मतलब बाई चांस हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है। लाइक मैं तो बस घर घर के लोग बर्थडे बनाते हैं, बस केक लाते हैं, काट या लेते हैं और क्योंकि बस। बिकॉज सब उत्साह उत्साह में कई बार ऐसा होता है कि एक तो लड़के की हम्म। मृत्यु भी हो गई थी बिकॉज ऑफ हम्म। दिस कि हाँ सब। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की भी मर गई थी यार, हाँ, कि उसके मुंह मैंने पर। भी देखा था। हाँ, बट व्हाट कुड वी टेल टू दीज पीपल हम्म। जहाँ इंजॉय करना होता है, इन्हें इन्हें लगता है कि जो इंजॉय नहीं करते हैं ना हमारी तरह, ये इनकी लाइफ में इंजॉयमेंट होता ही नहीं, बट ये दे डोंट नो द एक्चुअल ये तो इंजॉयमेंट। बात कही सही है आपने। हाँ, मैंने फील किया है कि जो थोड़ा हाँ। सा एक स्टैंडर्ड होता है ना अपना इंजॉयमेंट का, तो पीपल हम्म। जज हिम और हर कि इसकी कि लाइफ तो बस मतलब जो बोरिंग दिखाता है। नहीं है लाइक अपनी, हाँ, जैसे अपनी खुशियों को ज्यादा उजागर नहीं करता ना, तो उसके बारे में लोग ऐसे ही सोचते हैं। या दे जस्ट थिंक दैट हिज लाइफ इज बोरिंग और हर लाइफ इज। जैसे देख अभी लोग कुछ भी छोटी सी चीज खरीद लेते हैं या फिर कोई बड़ी चीज खरीद लेते हैं, तो ना उसकी ना स्टेटस लगाते हैं, 17 लोगों को बताते हैं कि एक एक तक खबर जाना चाहिए। या तो वैसे ही लाइक अगर अपन खरीद लिए और अपन नहीं करते ऐसा, तो लोग ना तब भी गलत समझते हैं और करते हैं तब भी गलत समझते हैं। या एंड आई फेल्ट इट कि मैं 2 बार दिल्ली चला गया, एंड देयर वर क्वाइट गुड लोकेशंस ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स, बट आई डिडंट क्लिक एंड इवन आई डिडंट गेट टाइम एंड हाँ आई हाँ, एम नहीं नॉट ये तो हैबिचुअल। ये बात तो है। लाइक ये तो हर इंट्रोवर्ट के साथ है, हाँ, हर एक इंट्रोवर्ट मेल के साथ ही है। या बट नहीं मतलब खुद की डिवाइस में खुद के मतलब फोटोज दिखेंगे ही नहीं, या तो दिखेंगे तो एक या दो दिखेंगे, वो भी किसी वैलिड रीजन की वजह से। या और फिर वो लोग सोचते हैं कि भाई इनकी शक्ल खराब है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। लाइक लोग ऐसा ऐसा सोचते हैं कि तू फोटो नहीं लेता। या last year I just went for morning walk on daily routine. It was हम्म। quite good location over there. मैंने बहुत सी हम्म। मतलब वीडियोस निकाली अपनी एंड फोटोज निकाले, बट मैंने स्टोरी पर आज तक नहीं, मेरी मेमोरी में है, बट आई डिडंट पोस्टेड देम एनीवेयर, आई जस्ट kept it बिकॉज कि कभी बाद में टाइम और मिलेगा। जैसे नहीं ऐसे ना लोगों का ना ऐसा एक एक चीज मैंने और देखी है यहाँ पे कि ना, जैसे अगर जैसे मतलब अपन कोई जॉब करते हैं या फिर अपना कोई प्रोफेशन है या फिर कुछ भी चीज है मतलब ऐसी, लेकिन अगर जिससे सामने वाला अपने बारे में उसको पूछ रहा है और अपन कहते हैं कि नहीं मैं इस बारे में बात नहीं बताना चाहता, मैं ये प्राइवेट चीज है, एक पर्सनल है ये, तो मैं नहीं बताना चाहता। जैसे कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैंने कि मैं जॉब करता हूँ। किस तरीके की जॉब करते हो, मतलब एकदम डिटेल में जानना होता है उनको।
Yeah, yeah. तो लाइक मैं मना कर देता हूँ ना किसी बंदे को, लाइक मुझे लगता है कि यार इसको बताने का कोई सेंस ही नहीं बनता इतना एफर्ट लगाने का, तो मैं मना कर देता हूँ, लेकिन कि नहीं यार मैं पर्सनल है ये, मैं नहीं बताना चाहता। तो ना जैसे कोई लड़का हुआ लड़की हुआ कि इसमें क्या है यार कि इतना इतना भी नहीं बता सकते या फलाना ढिकड़ा, कोई ये पर्सनल थोड़ी ना होता है, लेकिन लोग ना बहस करते हैं। Yeah, and जैसे मतलब मैं मान लो कोई किसी इंसान से पूछ लेता हूँ लाइक उसके बारे में, जैसे अगर वो कंफर्टेबल नहीं होता कि मैं नहीं बताना चाहता, ये आपके काम की बात नहीं है, तो मैं ना एग्री करता हूँ उसके साथ कि कोई बात नहीं, लाइक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। exactly. पर, पर लोग ना आर्ग्यूमेंट करते हैं इस बात पे भी। Yeah, that's the reason we avoid much conversation with the people, क्योंकि कई बार हम तो है ना दूसरे की बात पर चलो इतना ही हमें मतलब किसी ने बताया तो एग्री कर जाते हैं, बट सामने वाला कि वो डिग आउट करने के लिए खड़ा ही रहता है। एंड समटाइम्स इवन आई हैव बीन आस्क्ड इन ऑन दिस एप्लीकेशन इटसेल्फ कि हाउ मच पे ग्रेड ऑफ दिस रियमो सब इंस्पेक्टर इज। मैंने कहा आपको पे ग्रेड से क्या लेना, आई कुड चेंज द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल इन माई लोकेलिटी हाँ और लाइक देयर। देखो मतलब जैसे मेरा मानना है, देखो जैसे मैं ना लड़के होते हैं उनसे तो मैं फिर भी उनके बारे में पूछ लेता हूँ, लाइक आप कहाँ रहते हो, आप क्या कर रहे हो अभी, या फिर ऐसे मतलब जैसे बेसिक क्वेश्चंस या किसी अगर जो कि हर किसी स्ट्रेंजर्स की एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के बारे में। या पर ना जैसे जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना मैं लड़कियों से नहीं पूछता। या ऑफ कोर्स इट इज ऑब्वियस बट लाइक मैं लड़कियों से ना ये तक नहीं पूछता कि मतलब इतना पूछता हूँ कि भाई आप कौन सी कंट्री से हो, ताकि कन्वर्सेशन हो सके कि अपन को पता हो कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज की है। हम्म बस इतना पूछता हूँ, उसके अलावा उसकी एज, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी एजुकेशन या फिर उसकी जो लव लाइफ उसके बारे में तो भाई वहां तक तो मैं जाता ही नहीं हूँ कभी भी। आई तो मुझे आई पता है डोंट। ना लड़कियां ना जैसे आप एज के बारे में पूछोगे ना इतनी सी बात से ऑफेंड हो जाती है बहुत जल्दी। या एंड इट्स ओके और टू ना बी ऑफेंड, बट आई। पर जैसे या हाँ या मतलब जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि लाइक मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ दूसरे की प्राइवेसी की, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग मेरी भी पर्सनल प्राइवेसी को उस तरीके से ही रिस्पेक्ट करे। पर लाइक लड़कियां तो है ना इतनी मतलब आगे हो रही है फास्ट फॉरवर्ड। अभी थोड़ी देर पहले एक वियतनाम की लड़की आई थी, उससे बात हुई काफी देर तक, लाइक 10-15 मिनट तक। लाइक उसने मुझसे काफी बार पूछा कि आप इंडिया में रहते हो, आप क्या करते हो, ऐसे वैसे मैंने बता दिया उसको। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, जान ले तो क्या उखाड़ लेगी जानकर भी। इतना इतना पूछ लिया उसने मेरे बारे में, लाइक रिलीजन क्या है आपका, आप किस फैमिली से आते हो, ऐसे करके। फिर ना उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा मुझसे, लाइक उससे ना मुझे अजीब लगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। या और फिर मैंने कहा कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कि क्यों नहीं है, ये भी जानना था उसको। चलो यहाँ तक तो सही था कि नहीं है, फिर क्यों नहीं है, इट वाज लाइक कि हद ही होगी है हाँ ना। हाँ नहीं मतलब या फिर आप दूसरे की लाइक अगर आप तो आपको कोई पूछ लेता है लाइक किसी की कोई भी फीमेल हुई कोई भी हो गई, तो आपको प्रॉब्लम होती है, पर आप लाइक सामने वाले से खुलेआम पूछ रहे हो। एग्जैक्टली। एंड ही इवन ही हैज रिप्लाई, फिर पूछ रहे हैं कि क्या कारण है। इट इज क्वाइट डिस्गस्टिंग आई थिंक मैंने कि। फिर भी बता दिया, मैंने कहा यार देखो मैं तो एक राइट पर्सन का इंतजार कर रहा हूँ, और मतलब या फिर सच बात कहूँ तो अभी तक कोई मुझे मिला नहीं जो कि मुझ में इंटरेस्ट शो करे। मैंने तो उसे भूल गया, मतलब जो बात है सच है। हम्म फिर ऐसे कन्वर्सेशन चलती गई, मैंने ना थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि थोड़ी देर रुकना, मैं माइक म्यूट करता हूँ। फिर पता नहीं उसने अपने आप लीव कर दिया। कि हो सकता है इसकी लिमिट रीच हो गई हो या फिर कुछ हो गया हो। या इट कुड हैपन। हाँ लाइक मैंने उसको बता दिया, मैं ज्यादातर तो मैं उल्टा जवाब देता हूँ ऐसे लोगों को कि तुमको क्या मतलब है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। पर वो लड़की थोड़ी मुझे जेन्युइन लग रही थी, लाइक शाय भी लग रही थी, वो हिचकिचा भी रही थी पूछते टाइम। तो मैंने कहा यार बता देते हैं उसको, लाइक अगर इसको ऐसे बोलूंगा तो इसको जरूर हार्ड होगा, तो एग्जैक्टली इसलिए ब्रो। मैंने दया खा दिया मैं। Yeah, because people, some people are don't have the malice intention. They just quite interesting in knowing लाइक the. थोड़ी डिसेंट लग रही थी मुझे वो, जिस तरीके से बात कर रही थी, लाइक वो शर्मा भी रही थी और हिचकिचा भी रही थी पूछते टाइम। Exactly. And I also I. नहीं तो फिर से वो फॉरेनर थी ना, तो इस वजह से लाइक इंडियन होती ना तब तो मैं तो भगा देता, लाइक मैं निकाल देता भाई डायरेक्ट ही बिना जवाब दिए। Yeah, and on what conclusion I am at the moment कि
हम्म। कि if someone has love life and he is coming to our in our lives, so it is manageable if we both are understanding, because पर common. लाइक मुझे अभी लाइक ऐसा है कि मुझे यूजुअली ना मतलब एक या दो लड़की ने इस बारे में क्वेश्चन किया है, और ना मैं सोचता हूँ कि लाइक क्यों नहीं, मतलब उनको क्या जरूरत आ पड़ी कि वो मुझे ऐसी बात पूछे, नहीं क्या वजह हो सकती है इसकी। Actually this age, quite, हम्म। for each लाइक and every मतलब जैसे individual. ना like, मुझे अभी तक दो या तीन ऐसी लड़कियां मिली है जिसने मुझसे लाइक हर बारे में, जैसे ना कहते हैं ना बस लड़की से शादी करनी है तो उसके बारे में हर एक बेसिक जो उसकी है Mhm. मतलब इंफॉर्मेशन वो पूछे, जिस तरीके से भाई सवाल पूछे इन्होंने मुझसे एक एक डिटेल में। Yeah, it happens, लाइक bro. आप या लाइक अगर मतलब मेरा मानना है अगर आप कोई लड़की आप में इंटरेस्टेड है ना, तो लाइक वो ना और चीज पूछे ना पूछे आपकी फैमिली के बारे में जरूर पूछेगी, Yeah, फैमिली और आपके रिलीजन के बारे में जरूर पूछेगी। मैंने देखा है ये बात। exactly. And in this age we have come across many, how to say it, हम्म। temporal attachment as well, कि मतलब कोई कहीं भी मिल जाए तो somehow it हम्म। feels कि नहीं बस नहीं यही. जैसे ना लाइक मैं जिससे बात करता हूँ तो देखो मतलब जैसे मैं अपन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं लोग डिसेंट इंट्रोवर्ट्स, Yeah, तो अपन थोड़े रेयर होते हैं। yeah. तो लाइक मुझे लगता है कि वो लड़की भी ऐसी ही थी, डिसेंट तो थी सेम, लाइक डिफरेंट डिसेंट तो डेफिनेटली थी, Mm-hmm. पर लाइक वो थोड़ी इनोसेंट भी थी, और लाइक हो सकता है उसका इंटेंशन हो ऐसा, क्योंकि मैंने ना काफी कंफर्टेबली और काफी रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, Mm-hmm. लाइक बिना किसी फ्लर्टिंग के या फिर ऐसे कोई शो के, लाइक बहुत जेंटली बात करता हूँ मैं लड़की से खासकर। Yeah, yeah. you know and I हो think. सकता है लाइक उसको इस चीज की Yeah, वजह से कंफर्टेबल मुझसे yeah. मेरे साथ हुई और वो, जो उसकी लिमिट genuineness. खत्म हो गई वो अचानक से। Yeah, yeah. Because genuineness attracts genuineness, so that's the reason. हाँ हाँ। नहीं Yeah. नहीं, मतलब होता है लाइक जैसे, क्योंकि अपन जैसे लाइक अगर उनका इंटेंशन है कि वो उसे इस टाइप की पर्सनैलिटी लाइक उसकी रिक्वायरमेंट्स है, और उस ऐसे लोग तो कम मिलते हैं, लाइक अगर ऐसे उसको चाहिए डिसेंट इंट्रोवर्ट और थोड़ा जेंटल टाइप का बंदा, और तो ना ऐसे लोग रेयर तो होते ही हैं, लाइक अगर आपको कहीं दिख जाता है ना तो अपना मौका ग्रैब करने का मौका नहीं छोड़ना चाहोगे फिर। Exactly, it is with that of mine case, कि मुझे भी इसी हेलो टॉक पर वो राजस्थान वाला मैं बता रहा था ना आपको इंसिडेंस, बट वी आर नॉट that much connected now, but we are connected on Insta, Telegram. Even I have her number, but I didn't disclose it in in front, before her, कि मेरे पास आपका नंबर है, but somehow पर ना जैसे मेरा मानना है कि कोई भी हुआ, yeah, आपको ना उससे ना अफेक्शन शो नहीं करना चाहिए कभी भी। yeah, because नहीं ये ना लोग गलत फायदा उठाते हैं इस चीज का फिर। अब कई बार ऐसा हो जाता है ना, गलत फ़ायदा भी नहीं उठा रहा सामने वाला, तो कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसी आ जाती हैं कि या तो उसे थोड़ा लीव करना पड़ जाए, क्विट करना पड़ जाए, या हमें क्विट करना पड़ जाए, तो क्या ही फ़ायदा ऐसी चीज़ का, हमने इतना टाइम भी उस चीज़ में दिया। सो इट इज़ क्वाइट अनमेच्योर थिंग आई थिंक, कि हम बहुत ज़्यादा टाइम दे दें, तो बिकॉज. जैसे अब लाइक अभी उसके बाद ना जो लड़की आई थी, लाइक आपसे पहले जो लड़की मुझसे बात कर रही थी जो कि अचानक से लीव करके चली गई थी, वो भी ऐसी अचानक से लीव करके चली गई थी। उससे मेरी काफी अच्छे से बात हुई, काफी इंटरेस्ट के साथ बात कर रही थी वो मुझसे, जो कि ज्यादातर लड़कियां शो नहीं करती मुझसे बात करते वक्त। तो लाइक वो ना उसकी सहेली उसके पास थी, और मुझे लगता है वो उसको मॉक कर रही थी किसी ना किसी बात को लेके, जो कि वो लड़की मुझे नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैंने पूछा था उसे, ओके. लाइक डिफरेंट लैंग्वेज तो वो आती है लाइक अरेबियन, तो उसने ना लड़की ने उससे कुछ बोला था उसकी सहेली ने कि अरेबियन में, जिससे ना वो लड़की ना मतलब देते ना वो ऐसे वो मतलब जैसे अपन से कोई पूछ लेता है, अगर आपके सामने कोई इंसान है जैसे कि अपोजिट जेंडर, लाइक जैसे ना आपको से मतलब कहने का मतलब आपके बॉयफ्रेंड से किसी ने आपको बात करते हुए पकड़ लिया, तो आपसे आप अजीब सा बिहेव करोगे ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। या वैसी बात तो एंड उसके साथ हुआ था शायद, उसकी जो फ्रेंड थी उसको ट्रोल कर रही थी वो। एंड आई थिंक. तो मतलब फिर हाँ
कि जो जेन्युइन पर्सन होगा वो आपसे ना 1 to 1 ही बात करेगा, थर्ड पर्सन के सामने आई डोंट थिंक कि वो आपसे। हाँ हाँ, नहीं मतलब हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, क्योंकि मैं जब वो रूम में आई थी तो मैं रूम में मतलब यार मैं स्टेज पर पहले से एक राम नाम का बंदा था जो कि बात कर रहा था। वो आई तो नो लाइक मैं जब एग्जैक्ट। तक वो राम था ना हाँ उसका माइक म्यूट था। हाँ हाँ या और जैसे ही राम गया ना उसका माइक अनम्यूट हो गया। या इट इज द क्वाइट कि जेन्युइन पर्सन जो लाइक होता है ना मतलब ना उसकी। जैसे मतलब पहले ना उसने मुझसे सुना बात करते हुए कि हम्म मैं किस तरीके का हूँ। हम्म फिर जब मतलब उसको मौका मिला ना कि आप अकेले हो चुके हैं, तब उसने ना इंटरेस्ट शो किया बात करने में। या इट हैपेंस एंड समटाइम्स कि बोलते हैं ना कि कैरेक्टर एंड कैरेक्टर, आई डोंट थिंक कैरेक्टर काइंड ऑफ थिंग्स आर ओनली फॉर द दीज कम्स फ्रॉम द। नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है कि अब तो मैंने अपना चेहरा छुपा लिया है वापस से। हम्म लाइक मैं बैटमैन तो वापस से बन ही चुका हूँ हम्म कि पेड़ की खाल में भेड़िया। हम्म तो हो सकता है लाइक लोग ना अब उनके पास कुछ है नहीं, लाइक मेरी बायो भी खाली होगी मेरे हिसाब से, नहीं कुछ लिखा हुआ है हिंदी में वो तो कुछ खास समझ आएगा। हम्म तो ना उनके पास कुछ चीज है नहीं लाइक मुझे इमेजिन करने के लिए कि मैं रियल लाइफ में कैसा दिखता हूँ या फिर मतलब मेरी अपीयरेंस कैसी होगी। तो उनके पास सिर्फ एक चीज बचती है, वो है मेरी वॉइस बस। या वॉइस, मेरे बात करने का स्टाइल और मेरे मैनर्स, जिसके हिसाब से मुझे जज कर सकते हैं। या एंड या दीज आर इनफ इवन समवन हैव गुड थॉट्स कि उसकी वॉइस इतनी मतलब हम्म, एक होता है ना कि नहीं भी हो, जैसे मैं आई वाज लिसनिंग टू द करंट अफेयर्स, एक न्यू yeah, जो मैं यूजुअली जो मैं सुनता हूँ ना जिन चैनल्स से, तो अब की आज मैंने कुछ 2 नए चैनल्स पिकअप किए थे। देन आई फेल्ट दैट कि इनकी जो वॉइस है वो थोड़ी इतनी प्लीजिंग नहीं है करंट अफेयर जो मैं सुन रहा था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं आज तो इनका पूरा करंट अफेयर सुन, चाहे भले ही इतनी प्लीजिंग ना हो, नहीं इतनी वोकेबलरी इनकी अच्छी हो जिनका मैं पहले सुनता था। मैंने कहा ये कंपैरिजन गलत है कि इनकी वॉइस नहीं अच्छी है या इनकी पकड़ नहीं अच्छी है इंग्लिश पे, देखते हैं कंटेंट कैसा रिप्रेजेंट करते हैं। कि मैंने फिर उनका पूरा ही लेक्चर सुना, बिकॉज वेन एवर आई डू एक्सरसाइज आई जस्ट लिसन टू द करंट अफेयर्स व्हाट इज़ पर हैपनिंग या ऐसा मेरा सोचना है कि ना अगर आप किसी के भी साथ अच्छी कन्वर्सेशन या फिर एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना चाहते हो ना, या तो ना एक चीज की कंडीशन होती है इसकी, लाइक जो कि मुझे लगता है ज्यादा लोगों को नहीं पता। या लाइक ये कंडीशन ये है कि ना आपको सामने वाले को बोलने का मौका देना है, और अगर वो नहीं बोल रहा है ना तो आपको उससे पूछना है या कि इवन वो मतलब कंफर्टेबल हो जाए। या यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट कि आप उसको कोई ऐसा मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें सो दैट ही कुड आल्सो यू नो लाइक जैसे अपन जाते हैं कोई रूम में, जैसे लोग ना अपने आप में लगे रहते हैं स्टेज पे आने के बाद भी, या लोग तो ना वो बस बेसिक नॉलेज पूछते हैं अपन की, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ना अपन को ना वो मतलब पूछते भी नहीं है कि भाई ये भी है रूप में बिहार में। तो ना ये चीज ना मतलब थोड़ी मतलब एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करने से पहले ही बंद खराब कर देती है पूरा सब चीज। आप सामने वाले को तो लाइक वो बोलता है तो आप इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनते, बस आप खुद की बताते हो। या even I have whenever before 2 or 3 months I just conducted some voice streams. So I just equally tried to distribute to all the 4 members in the live stream कि सभी को बोलने का मौका दिया जाए, बट आई फेल्ट दैट कि समटाइम ना कुछ जब थर्ड पर्सन को मैं बोलने का मौका देता तो कोई थर्ड इधर वाला भाग गया इतना। सो इट इज़ क्वाइट इंटॉलरेंट बिहेवियर कि सामने वाले को भागा। फिर आई हैड इंश्योर्ड कि 1 to 1 कन्वर्सेशन ही बस हो, तो इसलिए जहाँ भी मुझे फ्रंट पेज वॉइस रूम में दिखता है तो मैं वहीं जो है बोल देता हूँ जस्ट। पर मैं तो ना अगर जैसे मैं तो अगर मन नहीं होता मेरा बनाने का तो लाइक मैं रैंडम लोगों के रूम वीआरस को एक्सप्लोर करता हूँ। तो मेरा ये हमेशा ना एक चीज को ढूंढता रहता हूँ मैं, कोई ऐसा वीआर मिले जहाँ में ना सिर्फ एक बंदा पहले से बैठा हो बस। या सिमिलर टू लाइक उससे फर्क नहीं पड़ता वो लड़का है लड़की है, उससे फर्क लड़का नहीं पड़ता, लड़की है उसकी अकेला हो बस। या लाइक पहले से 2-3 जने होते हैं ना, एक दो से ज्यादा जने होते हैं ना, फिर तो बिल्कुल मन फिर नहीं तो करता बिल्कुल बात नहीं, करने का। 2 में तो ये चलो भाई समझ ही नहीं आता एक भाई बार। कौन कौन की आवाज किसकी है। कुछ भी या समझ में नहीं आता फिर। या समटाइम्स की या मुझसे तो ना वो कोई बंदा था जो या
हेलो, या मतलब जैसे वो बंदा नीचे था, हम्म अब हम तीन जने थे ऊपर, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वही नीचे वाला बंदा कंफ्यूज कि जो गहरी आवाज है, डीप वॉइस है, ये है किसकी तीनों चारों में से। या एंड या तो कोई होस्ट ऐसा हो जो मतलब एक अच्छी तरीके से होस्टिंग कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाता है कि 4-5 नहीं, में। अगर होस्टिंग तब कोई अच्छे से कर सकता है, फॉर एग्जांपल मैं, या अगर उसके रूम में कोई है उसको सुनने वाला। या अगर बंदे आएंगे ही नहीं तो भाई क्या ही होस्टिंग होगी। exactly. What I do, I have two mobile phones. I just initiate my live stream. What I was thinking mm, कि मैं इससे अपनी लाइव स्ट्रीम इनिशिएट कर दूंगा और इस दूसरे वाले मोबाइल से दो जो मुझे सिंगल पर्सन मिलेगा ना वो इस रूम में मैं उनके पास में जा जाकर अगर कोई मिल गया तो सही है, नहीं तो कोई मोई बिकॉज इफ़ वी गो टू द अदर्स वॉइस रूम तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। अगर कोई हमारे लाइव स्ट्रीम में आता है तो हम एक होस्ट की वजह से ना थोड़ा सा एक बेनिफिट होता है कि हम कन्वर्सेशन को अपनी तरीके से ढाल सकते हैं कि व्हाट शुड बी द हाँ हाँ टॉपिक हाँ। ऑफ द नहीं, अगर कन्वर्सेशन। जैसे अपन किसी के में जाते हैं ना तो अपन को उनके टॉपिक्स पे अपन को डिबेट करना पड़ता है। या दैट्स द रीज़न आई आल्सो समटाइम्स यूज़ बोथ हम्म। की एक से मैं दूसरों के में जाके देखता हूँ और एक से मैं खुद इनिशिएट करता हूँ कि शायद कोई मिले बिकॉज in my washroom or the live stream I usually conduct live streams of mine. हाँ, पर जैसे मेरा मानना है कि अगर आप किसी से अच्छी या मीनिंगफुल बात करना चाहते हो तो ना उसका एल्डर होना जरूरी है, या तो उम्र से एल्डर या फिर दिमाग से दिमाग एल्डर। से एल्डर या जैसे कि मैं दिमाग से एल्डर हूँ, एज से नहीं हूँ, या इस तरीके से। एग्जैक्टली लाइक मेरी जो जितनी फीमेल से बात हुई है, लाइक जिन्होंने मुझसे अच्छे से रिस्पेक्ट पोलाइटली बात किया है बिना किसी डिले के, या तो वो सब ना थोड़ी एल्डर थी मुझसे, या लाइक 23+। जो लड़कियां होती है लाइक मेरी एज की या फिर मुझसे कम एज की, उनकी नहीं होता भाई, उनसे उनसे अच्छी बात नहीं होती, मतलब वो फालतू बात ही करती है सिर्फ। हाँ हाँ या it happens और you know कि in my in my college also I had good bonding with my seniors like in MEd like in B.Ed with my classmate didn't have that much good friendship बट जो मेरी सीनियर्स थी उनके सभी के साथ तो देर वाज क्वाइट लोट टास्क की ये तो मतलब कहते हैं कि ये किसी सीनियर से ही सो हाँ, सो लाइक बट जो एल्डर्स लोग होते हैं वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं इस या वजह से। एग्जैक्टली लाइक वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और वो तो ना मतलब सोचते हैं बात करने टॉपिक छेड़ने से पहले कि क्या चीज सही है क्या गलत, वो उस चीज का फर्क जानते हैं। और मैं अपने आप में कितने भी थोड़ा सा एक हल्के बिहेवियर के हूँ लेकिन जब आप अपने से छोटे के साथ में डील करेंगे ना मैं तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे ही क्योंकि वो एज ए कि अगर हम इनसे बड़े हैं तो आई थिंक कि हमारे में ना अपने टीचर्स और जो हमारे सीनियर्स हैं ना अगर जो उनके साथ सबसे ज़्यादा रहेगा ना उसे तो सक्सेस मतलब उसे तो एक अच्छी लाइफ लीड हाँ, करने वो में उसको कोई। जूनियर को कोई ठीक करते हैं। हाँ हाँ बिकॉज एक बार ना जो अगर कोई हाउ टू से कि कोई मेरा जूनियर है मेरे में कुछ कमी भी है ना तो मैं ना अपने अगर मेरा जूनियर मेरे पास आ रहा तो मैं उस कमी को हाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं उसके सामने एक आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी भी शो करूँगा चाहे मैं आइडियल नहीं भी हूँ। सो हाँ हाँ, एक तरीके इस से तरीके से अपने माँ बाप और फैमिली के लोग हाँ हाँ करते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है करते हैं। चाहे वो कितने भी कैरेक्टर लेस हैं मतलब। और एक टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है। मोस्टली कैरेक्टर क्या सोचते हैं मतलब गांव देहात में तो मोस्टली इन विलेजेस की कैरेक्टर लेस है। आई डोंट थिंक कि कैरेक्टर इज समथिंग वी कॉल द हाउ टू से द सेलिब्रेसी और काइंड ऑफ थिंग्स कैरेक्टर इज नहीं, नॉट। मैंने ना यहाँ पे ना आज तो एक मैंने ना एक ऐसा बंदे से मुलाकात मेरी हुई कि मतलब जैसे मैंने उससे बात की तो ना वो गाली दे के बात कर रहा था। हाँ तो मैंने उससे कहा कि भाई आप स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज करना साफ मना है, इसके लिए आपको बंदा रिपोर्ट भी कर सकता है सामने वाला। तो उसका ना पता ही क्या जवाब था कि यार मेरा रूम है, अब यहाँ पे ना रूल्स मेरे हिसाब से चलेंगे। कि मतलब उसका कहना था कि मैं किसी एक स्पेसिफिक इंसान को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे मतलब गाली देके बता रहा हूँ बस। तो
ये कोई गलत नहीं है। कि मैंने ओके। कहा भाई देखो बात सुनो, रूम में लड़की भी है एक, हाँ हाँ। तो ना उसका पता है क्या जवाब था, ये लड़की ना बहन है मेरी। Yeah, and you know these incidences happens in the हाँ homes as मतलब well. अगर आपकी कोई सगी छोटी बहन है वो, तो Hmm. लाइक सो खुद की सगी छोटी बहन के सामने कौन गाली बकता है। या कि मुझे तो कई कई बार वो हो जाता है ना कि मैं मतलब क्या बताऊँ, बिकॉज ऑफ एज अ टीचर क्या Gelin हुआ gelin यार। gelin. Gelin gelin gel. Toplantı yapıyorlardı ama yani geliyorlar gidiyorlar. Durun lan kaldığınız yerde. Welcome everyone. Anasını satayım benim bayraklardan yok yavrum. Bir tane var sanki bak şurada. Nihama nihama diyeyim ben de. Yemiyorum da anasını satayım. Bir insanın ağzına हो गया। गलत समझती है, लाइक वो फीलिंग को समझना ही नहीं चाहती जो छुपी हुई है एक, जो एक इंसान के पीछे, जो कि नहीं बताना चाहता कि उसके इंटेंशन कैसे हैं खुल के। या इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। एक तो क्या है कि भाई लड़का अच्छा कमा रहा है, बट वो उसे ऐसा फील करा रहा है घर में रहते हुए पत्नी को अपनी कि यू आर जस्ट कि मैं ही कर रहा हूँ बस, मतलब आप। इक्वल नहीं हो तुम। हाँ हाँ, कि बस मैं आपका ना आप पे कोई एहसान कर रहा हूँ ना, लाइक दिस। तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं चलेगा ये वाला सिस्टम की महिला घर में रहेगी भी वो, मतलब खुश नहीं रहेगी, वो सप्रेस होती ही रहेगी, मतलब अपनी पूरी लाइफ उसकी बेकार हो जाएगी। और और दूसरा आप पॉइंट, हाँ, आप देखोगे ना 90% केसेस ऐसे ही हैं जितनी भी मैरिज होती हैं इंडिया में मोस्टली, कि सफ़र ही करती हैं जो एक हाउस वाइफ होती है ना, सफ़र ही करती हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप सही मायने में कि आप इंडिपेंडेंस ही रहो, कि मतलब समझ रहे हैं ना, कि फिर चाहे प्रोटेक्टनेस कहीं भी भाड़ में जाए, आपकी जो पर देखो इंडिपेंडेंसी है एक ना। इंसान को ना इनसिक्योरिटी भी होती है हम्म। कि ये बाहर जाएगी 17 इंसानों से मिलेगी, या कि और एग्जैक्टली। कोई तो इसको वो लड़का पसंद ना आ जाए, अपन को चीट ना कर दे, एक इंसान को ना वो भी इनसिक्योरिटीज होती है, एग्जैक्टली। और वो है तो ना, इस वजह से इतना क्यों लगाता है वो। बहुत से मैंने ऐसे पर्सन्स भी देखे हैं, दे आर क्वाइट वाइड ओपन माइंडेड, बट ना हम्म, सोसाइटी उनको मतलब कंपेल करती है कि कि अब आपकी यू शुड कीप यू शुड कीप योर वाइफ इन दिस वे एंड दैट वे, आप ऐसे करना, आपकी वाइफ ऐसे कर रही थी। जो सोसाइटी है वो एक सोसाइटल प्रेशर भी क्रिएट करती है, उसकी वजह से भी कुछ हाँ, अच्छे जो ओपन माइंडेड होते हैं ना, मैं तो कुछ कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं कि बहुत से इतने ओपन माइंडेड होते हैं कि चाहे किसी से बात करे कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, कि और वो खुद भी मतलब हम्म। उतना फ्रीडम खुद भी लेके रखते हैं और सामने वाले को भी दे के रखते हैं, पर उन कहीं ना कहीं पर एक ये मतलब थोड़ा सा। मेरा समझ नहीं आता मुझे एक बात कि हम्म आजकल हर वुमेन बाहर काम करना चाहती है मोस्टली, 99%। हम्म ठीक है, तो ना जैसे लाइक अगर मैं अपने आदमियों का बताऊं, लाइक मैं काफी टाइम, 1 साल हो चुका है मुझे बाहर काम करते हुए, मैं बहुत अलग अलग आदमियों से मिला हूँ, अलग अलग एज की। हम्म मैंने सब में एक एक कॉमन चीज देखी है, सबका एक बात कहना था, उनको किसी को भी काम करना पसंद नहीं है बाहर, हम्म। लेकिन वो कमाना है, उनको कोई भी शौक नहीं है, लाइक वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना पेट पालने के लिए या फिर अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए काम करते हैं बस। या सम और ये बात ना मुझे एक ऐसे इंसान ने समझाई थी, इसकी ना बहुत एज है, लाइक 70-80 साल की है, कि बेटा कोई भी आदमी जो होता है ना, जिम्मेदार आदमी, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता मर्जी के लिए, कोई शौक नहीं होता भाई, वो हाँ, अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए काम करता है बस, वही अपना तो। मन मार गया। ये एग्जैक्टली। और समटाइम्स क्या होता है कि जो ये बोलते हैं ना कि ब्राइब ले रहे हैं, हम्म, रिश्वतखोरी हो रही है, ये सब भी लोगों हम्म, की एक्सपेक्टेशन पूरे करने के लिए ही करते हम्म, हैं लोग बाग, कि हम्म, बाय चांस फॉर एन एग्जांपल कि कोई है, अगर वो ब्राइब ना हम्म, ले तो वो अपनी शादी में 1 लाख रुपए खर्च करेगा, और हम्म, अगर उसने ब्राइब ली हाँ, पूरे जीवन भर कमाए अपने, तो उसने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए अपनी शादी में। तो ये कहीं ना कहीं हाँ, सोसाइटल प्रेशर भी तो है ना, कि अगर कोई स्पेशली क्या होता है जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं, तो इसे तो बस 15 से 20 लाख लगाना ही है लोगों शादी की में। ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, वही तो। भाई ये तो पैसों की बरसात करता होगा हर महीने। हाँ, तो
बस ये जो चीज़ है ना, ये एक जो ऑर्थोडॉक्सिकल थिंग है, इसको ना ब्रेक करते रहना चाहिए। मतलब कुछ लोग तो करते भी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम्पल तो सेट मतलब होता है मेरा ना। ऐसा मानना है, लाइक मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, ये बात सच है क्या कि कोई हर आदमी मन मार के काम करता है? एक्चुअली मैं तो, मेरा जो इंटरनल मोटिवेशन रहा है मेरी वॉर प्रिपरेशन के दौरान, अब भी मेरा हम्म। यही है कि अगर मैं इसे ही कंटिन्यू करता हूँ टीचिंग सेक्टर में ना भी जाके, चाहे मैं मतलब मेरे से ना 10,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं बचेंगे इस जॉब में, ठीक है। हम्म। लेकिन मैं चाहे मुझे कोर्ट मैरिज करना पड़ जाए, मैं अपने वर्क से काम मतलब प्यार करता हूँ। और मेरा वर्क क्या है, सिंपली मैं गांव में जा मतलब रिपोर्ट करता हूँ, जैसे कोई जैसे होता है ना कोई हम्म। वो क्लाइमेटीज होती है, नेचुरल क्लाइमेटीज होती हैं, उसका जो हाँ। डीएम सर से एक होता है ना, फंड रिलीज कराते हैं सरकार के द्वारा कि इनकी फसल जल गई हाँ। या बाढ़ आ गई तो इतना नुकसान है किसानों का, या इस फैमिली का घर घर में आग लगी तो इतना है, पशु मर गया तो इतना है, तो हम्म। जो गवर्नमेंट से फंड रिलीज डीएम सर के द्वारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिपोर्ट। सो यही है कि मैं क्या करता हूँ गांव में जैसे गया तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ्स हैं, हम्म। जो उनमें होते हैं ना कि कूलनेस होता है कि भाई गुटखा खाना, या समझ रहे हो ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कूलनेस हाँ, cool है। फीलिंग हाँ। लगती है उन्हें कि कूल हैं, समझ रहे हो ना। एक तो हो गया हाँ, समझ रहा डांस हूँ। की, एक फुहड़ता का डांस कर रही हो, एक हो गया स्किल वाला डांस है। तो हमें प्रमोट हम्म। करना चाहिए कि स्किल अगर किसी में है तो आप उस पर ध्यान दें, कि नहीं कि सभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ना कि कच्चा बादाम दिखाने में। हाँ हाँ, अगर आप में स्किल है तो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत हम्म। फुहड़ता भी चल जाएगी। हेलो डेविल। हम्म। या आई नो दिस। समवन लगता है मुझे अपन को किसने ज्वाइन करा है। या हेलो वर्ड नाम पे। आई नो ही इज ऊपर फ्रॉम। आना चाहो तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो। हेलो, वी हैव हाँ, ऊपर आना had a चाहते हैं। good conversation on the topics. Hello devil. हेलो कार्तिक ब्रो। हेलो Hello. होस्ट। Yeah, so हेलो। yeah, bro, devil, we were discussing about what, Suraj? हाँ, We were discussing about या भूल गए। हाँ। कि अपने वर्क से प्यार करना, या अपना जो वर्क कर रहे हैं उससे हाँ। वो हाँ। करना। हाँ। हाँ। तो एज ए रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर मेरा तो वही यही है कि मतलब जो न्यू जनरेशन हम्म। है उसको किसी न तरीके हम्म। से, जो एक होता है ना विशियस साइकिल होती है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे हैं और आप में दूसरी हम्म। स्किल है, वो ना डेवलप हो पाए इस चीज़ से, वो कहीं छिपी रह जाए आपके हम्म। सोसाइटल प्रेशर की वजह से, तो उस चीज़ को निखार के बाहर लाना। तो मैं तो यही है कि मुझे तो शो ऑफ करना नहीं है, चाहे सीधी कोर्ट मैरिज करनी पड़ जाए, और सिंपली इन टीचिंग में मेरा वही रहेगा, पढ़ाने से ज़्यादा मेरा हम्म। फोकस इसी पे रहेगा। इसलिए मैंने ना सिंपली बीएससी की है, एमएससी की भी नहीं है, हम्म। क्योंकि मैं जहाँ 9th 10th के जो बच्चे होते हैं ना, देयर हम्म। माइंड इज़ लाइक कि वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट होता है उनकी लाइफ में। बाद में आप उनको पीएससी में, हायर एजुकेशन में कितना भी समझाते चले जाओ तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने ये जो हम्म। 6 to 9th का क्लासेस का जो होता है ना, इसी का टीचर बनना मेरा मतलब वो रहा है शुरू से ही, कि बनूंगा तो इसका बनूंगा, हम्म। ना तो हायर प्रोफेसर ना लाइक एक। ये ना आपके लिए एक गोल की तरह है हाँ हाँ, कि आपको ना दूसरों की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक ना आप योगदान देना चाहते हो। एग्जैक्टली। पर ना मैं बात कर पूछ रहा था, मतलब जो लोग नॉर्मल काम करते हैं या फिर कोई कोई भी धंधा करते हैं, जैसे कि कोई शॉप रन करना या फिर किसी के यहाँ जॉब करना छोटी मोटी प्राइवेट, तो मतलब जिसमें उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है फिर भी वो करते हैं अपना मन मार के, तो मतलब उनकी सोच कैसी होती है? Yeah. So, Devil, could you throw some light on डेविल this कौन है ये? topic? नो ब्रो, यू शुड प्रोसीड। Okay, then you could just कि अगर कुछ एडिशनल पॉइंट मेरी वाली में लगेंगे तो आप ऐड कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो मेरी वाली है ना ये जॉब, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ब्राइबिंग होती है भाई, जो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की जॉब होती है ना, बिकॉज कि अगर आप। पर ना मेरा ऐसा कहना है आपसे कि हम्म, ना ये आपके लिए गोल है, हाँ हाँ पर लाइक मैं उन लोगों की पर्सपेक्टिव की हाँ बात कर रहा हूँ जो कि जिनका कोई गोल नहीं है, लाइक हाँ वो जिनकी जो हाँ जो वो कर रहे हैं वो उनका गोल नहीं है, वो सिर्फ अर्निंग के लिए कर रहे हैं। हाँ, मेरे एक सीनियर है, मैं उनसे बात कर रहा था इसकी रिगार्डिंग कि मैं यहाँ से रिज़ाइन करूँगा या टीचिंग में जाऊँगा।
तो वो बोल रहे थे कि हमारी सैलरी इतनी कम है कि हम ना मैनेज नहीं कर पाते घर घर के खर्चे, अपने बच्चों को पढ़ाना हमें तो लेना ही पड़ता है। और मैं अपने मन मन में सोच रहा था, मैंने कहा ये तो मतलब मेरे सीनियर्स ही। और मैं बताऊँ ना, जब मैं मिठाई लेके गया, आई वेंट टू माई स्कूल्स की या मेरे जितने भी कॉलेजेस हैं, सभी मेरे टीचर्स ने भी, जो एक आइडियल टीचर्स होते हैं ना, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि भले ही टीचिंग की प्रोफेशन में सैलरी ज़्यादा है, लेकिन इसमें बहुत पैसा है। मतलब उन्होंने ना इनडायरेक्टली मुझे कहा, समझ रहे हो ना, कि इस जॉब में रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर वाली में बहुत पैसा है। कहीं ना कहीं जिन्हें मैं आइडियल मान रहा था ना अपने टीचर्स को, मैं भी सोच रहा, मैंने कहा यार टीचर्स को तो यार, इन्हें तो यार, उनके साथ ना उस तरफ था, वो हाँ कुर्सी के नीचे वाले की तरफ। हाँ, मैंने कहा यार टीचर्स से तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वे कहें कि भाई, मतलब चाहे उस जॉब में कितना भी करप्शन है, लेकिन टीचर्स को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक गरिमा होती है प्रोफेशन की भी ना। अगर टीचर्स ही ऐसा नहीं कहेंगे, मतलब टीचर भी ऐसी बात करेंगे तो फिर किससे उम्मीद करेगा बस इंसान। बस तो मुझे बड़ा हर्ट फील हुआ कि यार ईमानदारी की तो कहीं जगह ही नहीं है। बस हम्म। थोड़ा सा ना होता है नहीं, जो, ईमानदार ना ऐसे घुट घुट के मरता है अपने देश में हाँ, तो। बस क्या बोल सकते हैं। या एंड आई डोंट थिंक कि अगर आप मैनेज 35,000 बहुत होते हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए। आप ज़्यादा शो ऑफ ना करो, आप अपने बच्चों को, अगर आप खुद कैपेबल हैं ना, तो आप गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ाओगे ना, तो भी आपके, अगर आप खुद टाइम दे पा रहे हो ना अपने बच्चे को, तो वो बहुत अच्छा कर जाएगा आपका बच्चा, रादर देन कि आप उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएं, फीस हाई भरें और अपने आप टाइम ना दे पाए। तो मेरी तो सोच यही है कि अगर आपने खुद ढंग से पढ़ा लिखा है तो ही है पॉसिबल, अदरवाइज इट इज़ या। सो या, व्हाट आर योर थॉट्स रियली? नहीं, मैं ना आपसे एक एडवाइस और लेना चाहूंगा। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो भाई। मतलब ना जैसे एक मेरे साथ अभी ऐसा है, लाइक मैं तो हूँ तो अभी सिर्फ 19 साल का। तो ऐसे एज में ना मेरे हिसाब से लव या फिर लव रिलेशनशिप की ना कोई जरूरत नहीं होती है ना। या तो ना जैसे मतलब ना इस एज में जब आ जाते हैं हम, या ये एक अडल्ट में बन जाते हैं, लाइक मैं अडल्ट में कंसिडर किया जाऊंगा इस एज को, क्योंकि मैं वोट कर सकता हूँ अब, या या फिर मैं कोई भी काम लीगली कर सकता हूँ, जैसे कि खुद का लाइसेंस बनवाना या फिर खुद के नाम से कोई व्हीकल खरीदना। तो ना जैसे इस एज में अपन आते हैं ना, तो ना मतलब जो लोग होते हैं अपने आसपास के, लाइक अपने क्लोज लोग, वो ना कोई मतलब जैसे अपोजिट जेंडर के हो गए, कि ना लड़कियों के साथ भी होते हैं, लड़कों के साथ भी होता है, कि ना आप उसका नाम लेके, लाइक कोई चीज अगर कोई है कि जिसके साथ ना आपका हो सकता है, तो ना उसका नाम लेके आपको चिढ़ाएंगे लोग। जैसे कि हमारे नेबरहुड में एक लड़की है, तो ना जो और कोई नहीं, मेरे घर के लोग खुद ऐसा करके उसके नाम लेके मुझे चिढ़ाते हैं। या हाँ भाई, मेरा जो भाई है ना भाई, वो तो कहता है कि यार भगा के कब लाएगा तू इसको। मतलब इतने ज्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं मेरे घर के। मेरी मम्मी तो यूं कहती है, लाइक तू अगर ले भी आया ना, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या इट हैपेंस ब्रो। लाइक उनको जाति से मतलब कोई और किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लाइक अगर लड़की अच्छी है तो। या और आई थिंक कि अगर लड़की अच्छी है, मतलब कैपेबल है, कि फैमिली समझ रहे नहीं हो ना। मतलब देखो, आजकल के पेरेंट्स है ना थोड़े से अवेयर हो चुके हैं इस चीज के लेकर, कि ना जैसे कि मतलब जैसे लड़के जो होते हैं कि ना, आजकल कमी है अच्छी लड़कियों की, कि जो इतना शो ऑफ नहीं करती, इतना बंठन के नहीं रहती, और मतलब अपने काम से काम रखने वाली जो लड़कियां होती है, डिसेंट लड़कियां, उनकी ना अभी काफी कमी आ चुकी है। तो जैसे ना वो लड़की ना तो मतलब सॉरी, आपका ना शायद वॉइस एको कर रहा है। हेलो। हाँ, लेकिन पता नहीं किसका वॉइस एको कर रहा है। किसका? हाँ, शायद कार्तिक भाई का कर रहा है। ओके, बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे आप? हेलो, कार्तिक भाई सुन रहे हो? या आई हाँ कुड हियर। हाँ, तो मतलब मैं कहा था, हाँ, कि लाइक वो लड़की में सारी क्वालिटीज है जो कि एक अच्छी हाउस वाइफ में होना चाहिए। लाइक
वो अपने काम से काम रखती है, अपने घर वालों के अलावा किसी से बात नहीं करती, उसका कोई मेल फ्रेंड सेक्शन नहीं है, जो फ्रेंड सर्कल होता है लाइक लड़के दोस्त हैं, तो मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है, तो ना लाइक नजर जाती है घर वालों की। हेलो, या तो मुझे क्या करना चाहिए मतलब? एक्चुअली द थिंग इज दैट कि जो लाइफ की जर्नी है ना, इसमें देयर वुड बी मैनी इंसिडेंट्स लाइक दिस कि आपको कहीं और फिर लगेगा ना कि एक बार एक जल्दबाजी हो जाती है कि थोड़ा, फिर लगेगा कि थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन ले नहीं लिया। मतलब जैसे मेरे तो कोई इंटेंशन नहीं है उसको हाँ लेके ऐसे। हाँ, वही तो ना। तो एक एज ए एज एन अल्टरनेट अपने पास रखना चाहिए कि अगर कहीं नहीं, जैसे कुछ भी है, जैसे मैं रिश्ते की बात अभी बता रहा था ना, तो मैं सबको बोल रहा हूँ कि मेरा राजस्थान मतलब वहाँ पक्का है कि अगर मैं मुझे कहीं और नहीं मिलता है तो मैं सीधा राजस्थान, जिस मतलब वहाँ इतनी है, मतलब इतना विश्वास है मुझे, तो वहाँ पक्का है मेरा कि अगर अगर कहीं नहीं मिला अब से 2-3 साल बाद नहीं बनी, तो एक दो अगर फिर मैं पता करूँगा उनसे कि कहीं आपका हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि उन्हें मैंने एक होता है ना कि मैं एक तो एक लड़का लड़की बात करते हैं, बोलते हैं कि मैं तेरे बिना ये नहीं और वो नहीं, आप कहीं मत नहीं करना। जैसे आपके पास है अल्टरनेटिव, फिर भी आप बेटर की तलाश में हो उस तरीके से, राइट? या क्योंकि इतना नहीं जान पाए हम, क्योंकि मैं भी इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और वो भी, मैं उनका भी नहीं देना चाहता, क्योंकि उससे क्या होगा, आफ्टर ऑल हमारी स्टडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो जाएगा एक दूसरे को जानने के हाँ, लिए एक ना। तरीके से डिस्ट्रक्शन का काम हाँ, करेगा और ये। उतना जान भी नहीं पाते हम किसी को ऐसे बातचीत करके तो ना। मतलब मेरा ऐसा मानना है जैसे कि मतलब वो लड़की ना लाइक मतलब ऐसा लगता है लाइक मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि ना वो उल्टा वो भी मुझे पसंद करती है, तो इस वजह से लाइक उनको ऐसा लगता है लाइक मतलब ऐसे लड़कियां तो बहुत है, पर हम्म वो उसको ही क्यों उसका ही नाम लेके मुझे क्यों चिढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ना ये लड़की भी इसको पसंद करती है उल्टा, हम्म। और लाइक कई उससे बार, गलत हाँ, इमेज होती है। या ऐसा नहीं है जैसे ना क्योंकि वो मतलब मुझे देख कर भाई रास्ता बदल लेती है वो। हेलो, अरे अरे तू चिढ़ता है ना, इसलिए तुझे वो चिढ़ाते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं चिढ़ता विढ़ता कुछ नहीं हूँ, लाइक मैं तो जवाब भी नहीं देता, पर जैसे ना वो लड़की ना अजीब बिहेव करती है, लाइक उतना मतलब मेरा भाई तो साफ साफ नोटिस करता है ये बात। जैसे हम उस दिन बाहर बैठे थे घर के, तो वो आई, तो ना मतलब ऐसे आती है ना, तो मतलब वो थोड़ी उसकी दादी के पास जाती है, वहाँ खड़ी होती है थोड़ी देर, मतलब पर ना उस दिन आई वो उसकी दादी के पास भी नहीं गई, आधे रास्ते से मुड़ के चली गई। फिर थोड़ी देर बाद ना उसने उसकी सहेली को भेजा, वो भी आई वैसे ही मतलब ऐसे मुड़ के चली गई देखकर कि ना, या जो मेरा भाई मुझसे कह रहा है कि ना भाई चेकआउट कर दी गई तो अंदर गया नहीं गया। एक्चुअली तेरे पेरेंट्स है ना भाई, तेरे तेरे पेरेंट्स जमाने के विचार रखते हैं, और हमारे पेरेंट्स को पता चला ना मैं किसी लड़की के पीछे हूँ, मेरे तो जान लेंगे भाई। या नहीं मतलब देखो जैसे ना ये अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे घर वाले जानते हैं कि अपना अपनी औलाद जो है वो कोई गलत शौक में नहीं है, तो इस वजह से इतना फ्रीडम उन्होंने दिया हुआ है। और मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं तो साफ बोलता हूँ घर में ना, मतलब वैसे कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ करूँगा, लेकिन वो चूज़ करने वाली बात अलग होती है, एक थोड़ा सा ना, एक थोड़ा सा छेड़ने वाली बात थोड़ी अलग होती है कि लड़की के नाम से उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ना ओपननेस हो जाती है, जैसे आपके केस में है ना। हाँ, क्योंकि नहीं मतलब वो लड़की ना कभी ब्लश करती है, हाँ, कभी आंखें चुराएगी, बताओ ना एक बात, और परसों, लाइक जैसे ना लड़कियों का ऐसा होता है, जो डिसेंट लड़कियां होती है मतलब लोगों का मानना है ऐसा कि जिस लड़की को पसंद करती है ना वो उसको हमेशा अवॉइड करेगी, हाँ और देखो वो ना ना एक हमेशा अवॉइड ही हाँ, करती है मुझे। ये देखो ना एक हार्मोनल चेंजेस भी तो होते हैं ना इस एज में, कि मतलब कुछ हाँ वो मतलब हाँ उस पास से मेरा भी यही सोचना है लाइक, क्योंकि इस एज में ना आपको अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है हर हाँ किसी से, हाँ, हर किसी पे क्रश आ जाता है। बस बस। अब मेरे साथ तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा होता है, पर क्या है ना, हम्म। मैं कंट्रोल कर पाता हूँ क्योंकि पता है नहीं पता नहीं, कि मेरे साथ तो नहीं होता ऐसा कुछ हाँ, भी, मेरे तो नहीं है कोई भी क्रश क्रश मैं वगैरह। पढ़ा हुआ ना, पता मतलब नहीं मेरे साथ क्यों नहीं कि होता। एक जो हमारा पूरा पेपर ही होता है वो इसी चीज़ का होता है कि अट्रैक्शन से ना, कि आप बच्चों को कैसे बचाओगे एज ए टीचर, कहीं ऐसा ना हो आप टीचर कम उम्र में बन रहे हो तो खुद ही अट्रैक्ट हो गए बच्चों के प्रति,
आर यू गेटिंग? सो इसके लिए एक अलग ही सेल मतलब पूरा पेपर होता है, तो उसमें सब बताया गया हुआ कि आप किस तरीके से बच्चों की ना ये डिफाइन होता है ओरिएंटेशन की, कोई कैसा बिहेव करेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा इस एज के बच्चों के मतलब जो पढ़ाना बहुत डिफिकल्टी होती है। नहीं, मेरा ऐसा मानना है, जैसे अभी वो लड़की 18 साल की है, ठीक है, मैं तो 19 साल में, तो 20 साल में लग रहा हूँ, मतलब मैं लाइक मैं 19-20 में हूँ, तो वो 17-18 के बीच में होगी। तो अगर ना उसकी जो लाइक उसका जो बिहेवियर है, अगर वो 21 साल की तब तक होती है तब भी ऐसा ही रहता है ना, तो मैं समझूंगा कि हाँ लाइक इसके ट्रू अटेंशन इंटेंशन है ऐसे, क्योंकि लाइक मतलब कहते हैं ना कि टाइम देना चाहिए यार कि अट्रैक्शन और ट्रू लव की ना, कि अगर किसी को वास्तव में है लाइक वो सीरियस है, तो ना वो टाइम के साथ में जाती नहीं है अट्रैक्शन। एग्जैक्टली कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं ट्वेल्थ पास आउट किया था अपना। देयर वाज अ गर्ल इन 11th को, मेरी फ्रेंड की ही मतलब छोटी बहन थी। तो उन्होंने कहा कि उसका जो कुछ 1 महीने का कोचिंग छूट गया था, तो उसने बोला कि वो बायो में थी जो मेरे साथ पढ़ रही थी, मैं मैथ्स था, कि इसका मैथ्स है तो पूरा करा देना 12th मतलब 11th का कुछ महीने मतलब फर्स्ट मंथ का। इट इज़ तो परसों उसकी शादी भी है। तो क्या हुआ कि मैं पढ़ाने गया, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब ब्यूटी से ही मतलब उसे कि मुझे ना एक होता है कि जो कैचिंग पावर होती है एक थोड़ा सा होता है, तो मैं उसमें अट्रैक्ट हो गया। जो उसका वो था ना पढ़ाते वो 11th क्लास का मैं मैथ्स पढ़ा रहा था। तो चलो कुछ नहीं, एक मेरा नहीं, एज डिफरेंस कितना था आप दोनों का? मुश्किल हार्डली 2 to 3 years, क्योंकि एक क्लास ही पीछे है ना मेरे से। तो मैं तो 1 ईयर का फिर गैप भी लिया था 12th के बाद ना, कोचिंग की IIT की। तो फिर हमने साथ में BSc भी की, मतलब साथ में, क्योंकि 1 साल का वो जो गैप मैंने IIT की कोचिंग में ले लिया, उतना उसका ना 12th हो गया कंप्लीट। तो फिर वो गैप भी पूरा हो गया, BSc हमने साथ में की। तो ना मुझे कई बार, जैसे आप बोल रहे हैं साथ में सामने आते तो अवॉइड करता है, तो मुझे कई बार ना उस एज में ना खुद को बहुत ज़्यादा माइंड ले जाता है कि उसने मुझे अवॉइड किया, अब ये क्लू दिया, अब वो क्लू दिया, और ये चीज़ें बहुत दिनों तक चलती रहती हैं। ये एक डिल्यूजन क्रिएट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ना कोई लड़की ऐसा उसके अलावा ना कोई ऐसा ट्रीट करती नहीं है मुझे। अब होता है ना, देखो थोड़ा अट्रैक्शन उसकी साइड से भी होगा तो जाहिर सी बात है वो ऑब्वियस झलकेगा ना। बट वो कई बार ना हम अपने मन में बहुत बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हाँ, नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा तो, लाइक मैं तो बस परेशान हूँ, ये घर वाले सुधरते नहीं है। लाइक मैं प्यार से समझाता हूँ तो मानते नहीं है ये, तो बस मैंने कहा यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनका। सो मैं उसे भगा के लेके आया। सो डेविल, बस ऐसे बोलते हैं ना तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लाइक क्योंकि अगर ऐसे मतलब ऐसी ऐसी बातें कहते हैं ना लोग, तो अपने मन में कभी कभी मैं चाहता हूँ कि ना ऐसे इंटेंशन वो ना जाए मेरे, बस एक इस बात का डर रहता है मुझे। सो डेविल, इट हैड इट एवर हैपन विद यू ब्रो? हाँ भाई, क्या बोलूं तुझे, मेरे साथ तो ऐसे बहुत हुआ है। अब मैं हूँ डेविल। डेविल का लिखा कहाँ पर हुआ है वैसे? अरे मेरा पहला नाम डेविल था, मैंने नाम चेंज किया। अच्छा, तो आप दोनों जानते हो एक दूसरे को पहले से? हाँ, पहले से जानता हूँ। अच्छा, वैसे कार्तिक, आपने जो एग्जाम पास की थी वो कौन सी एग्जाम थी? Bro, it is pre or mains. It is of preliminary examination test and the of revenue सब इंस्पेक्टर इसका मेन परीक्षा थी। और जो आप कह रहे थे ना मैथमेटिक्स बेसिक्स के लिए, आई हैव अ टेलीग्राम चैनल फॉर दैट, आई वुड ऐड यू। आप टेलीग्राम यूज़ करते हो? हाँ, तूने ऐड किया है मुझे। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। तो हाँ, और इसके लिए टीचिंग के लिए तो बस वही है CTET, और जो एक मेन एग्ज़ाम होता है जब वैकेंसी आती है, और फिर इंटरव्यू। हाँ, और तो भाई हाँ बोलो या बोलो। अब आप क्वेश्चन पूछो। बस यही था, और तो ज़्यादा मैंने एग्ज़ाम दिए भी नहीं है मतलब, लेकिन नॉलेज सभी की है कि एक एज अ गाइड की मतलब बता सकता हूँ कि मतलब किस तरीके से जाना चाहिए। बिकॉज ना मैंने देखा है बहुत ज़्यादा बच्चे ना, डाइवर्सिफाइड फील्ड हो गई है कि यूट्यूब पे 10 चैनल है वो बता रहे हैं ऐसा करना है। तो लेकिन ऐसा है कि मैं किसी भी बंदे को उससे बचा के एक
ट्रू स्ट्रेटजी जेन्युइन स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद टाइम वेस्ट किया है ना उनमें, तो इतना है बस। हाँ, तो मुझे एक बताओ कि जब मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना होगा तो कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी? आप सिंपली 12th तो पास हुई, तो अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो पुलिस में, जो एक होता है मतलब एक थाने में 2 या 3 ही होते हैं एक पुलिस स्टेशन में, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे फिल करोगे, अदरवाइज 12th ही होगा। आई थिंक महाराष्ट्र में भी 12th बेस पे आप सिंपली फॉर्म फिल करोगे। जैसे यूपी में ना वैकेंसी आई है, मैं तो ये कहूँगा आप यूपी वाली वैकेंसी का फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि 60,000 ओके सॉरी, अब तो फॉर्म फिल जो लास्ट डेट थी वो भी चली गई ना, क्योंकि 60,000 से ऑल इंडिया फिल कर सकता था यूपी में, 60,000 में बहुत इजीली नंबर आ जाता है। अब जब भी महाराष्ट्र में वैकेंसी आएगी तो ध्यान रखना कि 12th बेसिस पे ही होगा आई थिंक वहाँ भी। तो सिलेबस उसका क्या रहता है? मोस्टली आई थिंक मराठी होगा वहाँ, तो लैंग्वेज में मराठी या हिंदी, और मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ये जस्ट जीके में कुछ भी पूछते हैं ना? हाँ हाँ, मोस्ट वाइडली इसकी एक बुक ले सकते हैं आप, कोई भी पब्लिकेशन जो फेमस होगा वहाँ, बिकॉज यूपी में घटना चक्र है। हाँ, तो जो पुलिस ऑफिसर बनते हैं ना, वो सबसे टफ एग्जाम होती है क्या ये सब? नो नो, मतलब ऐसा तो कुछ उसे नहीं। नहीं मतलब सब इंस्पेक्टर के ऊपर की पोस्ट कौन से होते हैं? इंस्पेक्टर होती है वो उसके थ्रू आती है, पीसीएस के ना, स्टेट पीसीएस के थ्रू बनते हैं वो इंस्पेक्टर्स, या प्रमोशन होके जो सब इंस्पेक्टर होता है तो प्रमोशन से जाते हैं, या पीसीएस के थ्रू आते हैं। तो पीसीएस कौन सी एग्जाम होती है वो? ये सिविल सर्विस, यूपीएससी करने करते क्या? इसे स्टेट पीसीएस कराता है। जैसे ना यूपीएससी तो हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट हाँ, पीसीएस, तो हाँ एक ये तो एमपीएससी। हाँ वो तो ऑल इंडिया के होते हैं, एक स्टेट भी उसी के ना, उसी की तर्ज पे कंडक्ट कराता है, यूपीएससी की तर्ज पे ही एग्जामिनेशन, ग्रुप बी और सी के, तो उसमें आ जाते हैं ये एसडीएम भी, और ये होते हैं ना एसडीएम, इंस्पेक्टर्स, डिप्टी डीवाईएसपी, डिप्टी एसपी ना, ये सब उसमें कवर हो जाते हैं। और वो डीवाईएसपी के लिए कौन सी एग्जाम होती हाँ है वो वो? स्टेट पीसीएस ही होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससी बोलते हैं उसे। स्टेट पीएससी, उसका सिलेबस क्या रहता है? उसमें प्री और मेंस होता है भाई, देखो उसमें 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक तो प्री और मेंस होता है रिटर्न, वो ऑब्जेक्टिव, ओके। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेकंड सब्जेक्टिव, मेन सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव के मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर इंटरव्यू भी होता है। हाँ ओके, तो उसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं मतलब? अब देखो यूपी में तो कोई ऐसा ऑप्शनल नहीं है कि